Hi kids, today we are here to take up the ninth lecture of derivative from it's not derivative, it's determinant. एक वीडियो में पहले भी मैं ये एरर कर चुका हूँ, मैं उसको डेरिवेटिव बोल देता हूँ, वेयर इज इट इज डिटर्मिनेंट्स। ध्यान रखना, आज हमारा कौन सा लेक्चर है? नाइन्थ लेक्चर है। डिटर्मिनेंट्स का थोड़ा सा लंबा हो गया है, सो प्लीज टेक केयर। लेट्स स्टार्ट अप विद दिस। आज लास्ट क्लास में हमने 3 क्वेश्चन जो थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे जो लिए थे। 2 क्वेश्चन और हैं विच आर गुड, बाकी सब एवरेज क्वेश्चन है या अच्छे क्वेश्चन है। दे आर द बेस्ट क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम करेंगे, दूसरा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। दैट इज वन इज इन अ मिसलेनियस एक्सरसाइज, अदर वन इज इन अ एग्जाम्पल। नाउ सी दिस वन। हम मिसलेनियस का एग्जाम्पल क्वेश्चन 12 लेते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन 12। नाउ ध्यान से देखना इसको भी केयरफुली। दिस कम्स आउट टू बी व्हाट आई हैव। This is x, y, z. This is x square, y square, z square. This is 1 plus px cube, 1 plus py cube, 1 plus pz cube. ठीक है? Now, this we have to prove it equivalent to what? 1 plus px y z. ठीक है? Into x minus y minus z and z minus x. Now what I'll do, अगर आपको याद हो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दैट वाज द सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी, 6th प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था एट अ टाइम आई कैन, इफ अ रो और अ कॉलम इज गिवन एज अ सम ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, तो आई कैन कन्वर्ट दिस इनटू सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स। ठीक है? तो एट अ टाइम आई कैन सेग्रीगेट आइदर वन रो और वन कॉलम। ठीक है? अब हम इसमें क्या लेते हैं, आई विल टेक अप दिस straight away लेफ्ट हैंड साइड लेके, दिस आई कंसीडर एज लेफ्ट हैंड साइड एंड स्ट्रेट अवे स्टार्टिंग अप विद इट। ठीक है? ध्यान से देखिए यहाँ पे आई कैन राइट डाउन दिस वन एज व्हाट? x y z, x square y square z square. This is 1 1 1 plus what I have it here, this is again x y z, x square y square z square. This is what? px cube, py cube, pz cube. ठीक है? Now this is what I get. ठीक है? Now carefully see to it. हम क्या करते हैं इस सेकेंड डिटर्मिनेंट पे? I'll take out x common from R1, y common from R2, z common from R3. In second determinant हम क्या करते हैं? Taking x y and z common from R1, R2 and R3 respectively. अगर मैं ऐसा करता हूं तो this comes out to be what? ये मेरे पास क्या बनेगा? This is x y z, this is x square y square z square, this is 1 1 1. Now plus what we get, यहाँ पे क्या आएगा? x y z. ओके, एक और काम भी किया है, चलो ठीक है ना, कोई बात नहीं। दिस कम्स आउट टू बी व्हाट वी हैव? 1 1 1. दिस इज x y z, दिस इज व्हाट वी हैव? p x square, p y square, p z square. ठीक है? व्हाट आई विल टेक अप इन दिस केस, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हम लेके चलते हैं c2, क्योंकि ये देखें 3 1 है, ये भी 3 1 है, नॉट c2, r2 टेंड्स टू R2 minus R1 and R3 tends to what I have? R3 minus R1. ठीक है? अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे पास यहाँ क्या आएगा? This is x, this is y minus x, this is z minus x. This is what? X square, this is what? Y square minus x square. This is we have z square minus x square. This is 1 0 0. This comes out to be what we have? Plus x y z. This comes out to be again as what? 1 0 0. This comes out to be what I get? X y minus x, this is we have it z minus x, this is p x square, this comes out to be p y square minus x square, this is p, this is z square minus x square. ठीक है? That's what we have it. ठीक है? Now what I'll do it further, अब हम यहाँ पे आगे क्या लेते हैं, ध्यान से देखना प्लीज। Now what we take up, taking y minus x and z minus x common
from R2 and R3 respectively. ठीक है, अगर मैं ऐसा करता हूं तो what I can have it out in this case, यहाँ पे क्या आएगा, this is x minus y, sorry not x minus y, it is y minus x. This will be y minus x, this will be what, z minus x, this will come out to be what I get, ये determinant मेरे पास क्या आ जाएगा, x, this is 1, this is 1, this is x square, this comes out to be what, y plus x, this is z plus x, this is 1 0 0. ठीक है, now next what we have in this case, this is what, x y z, this comes out to be further as what, 1 0 0. now this comes out to be x, ये क्या आता है, 1 1, this comes out to be p x square, this comes out to be p, ये क्या आएगा, y plus x, this comes out to be p z plus x. ठीक है, now what I can do it up here, यहाँ पे अब आगे क्या करते हैं, हम क्या लेते हैं, expanding first determinant, expanding first determinant, along C1 and second determinant along ये C3 से एक्सपैंड है और ये C1 से एक्सपैंड है. ठीक है, अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज y माइनस एक्स, दिस इज z माइनस एक्स. यहाँ पे मैंने क्या किया, लाइक आई एम टेकिंग आउट डायरेक्टली, प्लीज टेक केयर, ये 1 था, अब मेरे पास क्या आया, दिस इनटू दिस इज व्हाट आई गेट, z, ये क्या था, z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई जेड. अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे मेरे पास क्या आता है, अगेन दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो ये क्या आ जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी, चाहो तो ये लिख लो, p p z माइनस सॉरी p x माइनस पी वाई माइनस पी एक्स. ठीक है, दैट्स व्हाट वी हैव. पी एक्स से पी एक्स कैंसिल हो गया. ठीक है, अगर मैं इसको फर्दर लिखता हूं तो ये क्या आता है, y माइनस एक्स, दिस इज z माइनस एक्स, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, x से x गया, दिस कम्स आउट टू बी, सॉरी ब्रैकेट है, z माइनस y प्लस ये क्या होगा, ये क्या होगा, यहां से इन दोनों में से p कॉमन लेना, p x y z, ये क्या बन जाएगा, z माइनस y. I'll take out even z minus y common. मैं यहाँ से z minus y भी common निकालता हूँ. ठीक है, before that sorry, write down y minus x, this is z minus x, this comes out to be z minus y, this is 1 plus p x y z. ठीक है, now this can be written as what, यहाँ से minus sign बाहर आया, this is x minus y, this is ये फिर से minus sign बाहर आया, plus हो गया y minus z, this comes out to be z minus x, this is 1 p x y z. That's what is my answer. ठीक है, ये easiest और shortest way है. हाँ, there are many things people do. मैंने जो इसमें experiment नहीं किए, बाकी चीजें नहीं ट्राई की. कई लोग क्या करते हैं, जैसे इस स्टेप के बाद कई बार हम क्या करते हैं, यहाँ से p भी कॉमन ले लेते हैं, फिर हम इनके रो को रोटेट इंटरचेंज करते हैं, एक बार उससे माइनस साइन आता है, फिर दूसरी बार इंटरचेंज करते हैं, तो ये और इसकी शक्ल सेम बन जाती है, बट उसमें 2 या 3 स्टेप और लग जाएंगे. फिर उसको कॉमन निकाल कर एक सिंगल डिटर्मिनेंट बन जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड. इसको जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया, मैंने 2 को लेके सॉल्व किया, उस सिंगल को लेके सॉल्व कर लेते हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू यू, वेरी फाइन. इसी के जैसा बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन वी हैव इट इन आवर एग्जांपल. देखिए ध्यान से, उस एग्जांपल में क्या है, उस एग्जांपल में क्या कहा गया, ध्यान से देखना प्लीज. इसी को रख करके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी आप उसको अपने आप करेंगे. दैट इज एग्जांपल नंबर 15. एग्जाम्पल 15 है, उसमें मेरे पास ये नहीं है, उसमें ये भी नहीं है, उसमें ये भी नहीं है. उसमें कहा गया है कि दिस इज इक्वल टू 0. हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है, हमें उसमें इक्वेशन सॉल्व करनी है. ऑलमोस्ट सेम वर्किंग, सब कुछ बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पे ये p नहीं है. ठीक है, अगेन वी फॉलो द सेम मेथड, ये नहीं है. ठीक है, फिर यहाँ पे लेते हैं, ये नहीं है. सब कुछ सेम चलता है, बिल्कुल सेम चलता है. यहाँ से अगर हम चलेंगे तो ये नहीं है. ठीक है, बाकी सारी कहानी सेम है, सिर्फ ये नहीं आएगा. हाँ, दिस इज इक्वल टू 0 है, ये ध्यान रखना. सब में ये क्या है, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0. यहाँ पे इक्वालिटी की जगह पे दिस इंप्लाइज का साइन आ जाएगा.
ठीक है, ये दिस implies, ठीक है। नाउ I'll just show you the rest of the working, ठीक है। अब उसने मेरे को यहाँ पे क्या कहा, बिल्कुल सारी कहानी बिल्कुल सेम एज इट इज चली, कोई चेंज नहीं आया, बिल्कुल सब कुछ सेम एज इट इज चला। सिर्फ यहाँ पे क्या आया मेरे पास, लाइक इट कम्स आउट टू बी अगेन z प्लस x माइनस y माइनस x, ये x से x गया कैंसिल हुआ, तो ये मेरे पास क्या है, इक्वल टू 0। अगेन आई फॉलो द सेम मेथड, दिस इज व्हाट y माइनस x, दिस इज z माइनस x, यहाँ से क्या आएगा z माइनस y कॉमन, ये क्या बचेगा 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू व्हाट 0, ये था मेरे पास। नाउ दिस इंप्लाइज, ध्यान से देखना, अब मेरे पास वो क्या कहता है, क्वेश्चन में क्या कहा गया, इफ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, ध्यान से देखना, नॉर्मली हम क्या कहते हैं, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0, ठीक है। एज ही सेइंग, ही व्हाट ही सेइंग, एज एक्स वाई एंड जेड are different, तो this y minus x is not equal to 0, z minus x is not equal to 0, z minus y is not equal to 0, तो अब मेरे पास क्या आया, so what I get, so 1 plus x y z is equal to 0, यही हमें शो करना है, rest everything was same। तो हमने एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, ठीक है, फाइन। दे वर द गुड क्वेश्चन, ये सारे अच्छे क्वेश्चन से। नाउ दे वर द बेस्ट क्वेश्चन, आई विल से टू यू, 4-5 क्वेश्चन का लॉट है जो बेस्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, बाकी सब अच्छे हैं, बाकी सब कुछ एवरेज हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, बट दे वर द बेस्ट, ठीक है। नाउ कमिंग नाउ टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। आई एम टेकिंग अप द मिसलेनियस का ही क्वेश्चन नंबर 16 विद यू। Now, question number 16 miscellaneous का ध्यान से देखना प्लीज। Now, 16th question, नहीं सॉरी, this is an example. Example 16 ले रहा हूँ मैं आपके साथ प्लीज। Example 16. Example 16 क्या कहता है, मेरे को प्रूफ क्या करना है, 1 plus a 1 1 1 plus b, this is 1, this is 1 1 1 plus c. Now I have to prove this is equal to a b c, this is 1 plus 1 by plus 1 by b plus 1 by c, ठीक है। Now again I will consider this one as left hand side, सिर्फ इसी को लेंगे, राइट हैंड साइड लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ध्यान से मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, थोड़ा सा साइड में आ गया, दिस इज व्हाट 1 by b and this is what 1 by c, ठीक है। Now what there are lot of ways we can do it, हम एक मेथड से पहले ट्राई करते हैं, देखें ध्यान से, देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, मैं लेता हूँ R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1, R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, क्योंकि मेरे को ना बड़े सारे 1 दिखाई दे रहे थे, तो आई थॉट कि जो 1 दिख रहा है उसको तो हम 0 बनाएं, ठीक है ना। 1 प्लस a माइनस a, दिस इज 1 b 0 1 0 c, ठीक है। अब कुछ नहीं करो, एक्सपांड कर दो, किस रो से करोगे, C3 से कर सकते हो, या आप C1 से भी इसको सॉरी R3 से भी एक्सपैंड करते हो। लेट्स एक्सपैंड अप, एक्सपेंडिंग along C3। अगर आप C3 से एक्सपैंड करोगे तो क्या आएगा, 1 इंटू माइनस ए बी माइनस ए 0, और ये क्या आएगा प्लस सी, दैट कम्स आउट टू बी 1 प्लस ए 1 माइनस ए 0, सॉरी सी से सी है ना, नो माइनस ए नहीं आएगा, ये आएगा माइनस ए माइनस बी, क्योंकि सी है, दैट मींस आई लीव दिस रो एंड दिस कॉलम। जैसे 1 में था तो 1 में ये रो ये कॉलम छोड़ा तो ये आ गया, ठीक है। नाउ व्हेन आई एक्सपैंड व्हाट आई गेट, दिस इज व्हाट 1, दिस इज 0, दिस इज ए बी, दिस इज व्हाट सी। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा b प्लस ए बी प्लस ए, तो अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूं तो ये आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए सी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए बी सी कॉमन ले लो, बचेगा क्या, इसकी जगह आएगा 1। अब यहाँ c नहीं था तो ये 1 बाय सी हो जाएगा।
अगले वाले में a नहीं है, 1 by हो जाएगा, आखिरी वाले में b नहीं है, 1 by b हो जाएगा. So I'll write down this one as a b c, 1 plus 1 by a plus 1 by b plus 1 by c. ठीक है, ये मैंने ऐसे किया, आप किसी भी और तरीके इसको लगा सकते हैं. ऐसे बहुत से लोग क्या करते हैं, what they do it up here, please I'll just show it to you. बाकी रेगुलर वर्किंग है, to make it different. ये सबसे छोटा है जो मैंने अभी आपके साथ किया है. वो क्या करते हैं, taking a b and c common from R1, R2 and R3. अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे पास यहां क्या बन जाएगा, ये दूसरा तरीका है, ध्यान रखना. वी कैन राइट डाउन और, प्लीज बी केयरफुल. नाउ मेरे पास ये क्या आता है, दिस गिव्स अस व्हाट वी हैव ए बी सी. ये क्या बन जाता है, यहाँ पे ए कॉमन लूंगा तो ये 1 by 1, दिस इज प्लस 1, दिस इज 1 by, दिस इज 1 by, दिस इज 1 by b, 1 plus 1 by b, this is 1 by b, this is 1 by c, this is 1 by c, 1 plus 1 by c. Now what I get from here, r1 tends to r1 plus r2 plus r3. अगर ऐसा करता हूं तो ये आएगा a b c, this comes out to be what I have, 1 plus 1 by a plus 1 by b plus 1 by c, 1 plus 1 by a plus 1 by b plus 1 by c. 1 plus 1 by a plus 1 by b plus 1 by c. Now what I get from here, this is 1 by b, 1 plus 1 by b, this is 1 by b. This is what we have, 1 by c, this is 1 by c, this is 1 plus 1 by c. ठीक है, now I'll take out this 1 plus 1 by, इसको कॉमन ले लेंगे. taking this as common, तो ये क्या आएगा, a b c, ये क्या आया, 1 plus 1 by plus 1 by b plus 1 by c. अब ये क्या बचेगा मेरे पास, 1 1 1, this is 1 by b, 1 plus 1 by b, this is 1 by b, this is 1 by c, this is 1 by c, 1 plus 1 by c. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं r2, c2 tends to c2 minus c1, c3 tends to c3 minus c1. इन दो को जीरो बनाओगे, एक्सपैंड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, so either this way or this way, any of the way you can do it. ठीक है, नाउ लुक इनटू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट लेते हैं, वो भी एग्जांपल है एनसीईआरटी का. दैट इज एग्जांपल नंबर 34. दिस इज एग्जांपल नंबर 34. देखें ध्यान से इस एग्जांपल को. एग्जांपल 34 क्या कहता है, हमें इट्स अ इजी वन, इजी है. वो क्या कहता है, मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इट इज एग्जांपल 34. क्वेश्चन से देखिए, a प्लस बी एक्स, सी प्लस डी एक्स, पी प्लस क्यू एक्स. दिस इज ए एक्स प्लस बी, दिस इज सी एक्स प्लस डी, दिस इज पी एक्स प्लस क्यू, दिस इज यू, दिस इज वी, दिस इज डब्ल्यू. That's what we have it. ठीक है, now अब मेरे को प्रूफ क्या करना है, this is equal to 1 minus x square. This is what we have, a b u c d v p q w. That's what I have. ठीक है, now what I'll get from here, ध्यान से कि ये bx है, ये क्या है, bx. ना थोड़ा सा स्मार्टली चलेंगे. यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम लेते हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं. प्लीज टेक इट राइट हैंड साइड, आई एम नॉट राइटिंग. ना इसको लेफ्ट हैंड साइड लिया तो मेरे पास यहाँ पे क्या लिखता हूँ, पहले ही वाला कॉलम, r1 टेंड्स टू r1 माइनस x टाइम्स ऑफ r2. r1 टेंड्स टू r1 माइनस x टाइम्स ऑफ r2. अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये क्या आता है, दिस इज a, ये क्या था, r1 टेंड्स टू, तो ये क्या आएगा, a, क्योंकि bx से bx कट जाएगा, a माइनस ए एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये क्या आएगा, c माइनस सी एक्स स्क्वायर, दिस इज p माइनस पी एक्स स्क्वायर. दिस इज व्हाट वी हैव, ax प्लस b, cx प्लस d, px प्लस q, px प्लस q. ठीक है, this is u, this is v, this is w. Now what I get from here,
मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, टेकिंग 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन फ्रॉम R1। अब अगर आप बड़े ध्यान से देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको थोड़ा सा भी अगर स्मार्टली चलोगे, a माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया, c 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ p 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया ना। अगर मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कॉमन लूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या था, दिस इज ax प्लस b, दिस इज u, दिस इज cx प्लस d, दिस इज b, दिस इज px प्लस px प्लस q, दिस इज w। Now what I get from here, px plus q. Now what I get from here, this comes out to be what we have, r2 tends to r2 minus x times of r1। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे पास यहाँ क्या आता है, दिस इज a, ठीक है, दिस कम्स आउट टू बी x टाइम्स करूंगा तो ये क्या होगा, r1 का, तो ये x खत्म, दिस इज b, दिस इज u, सॉरी, इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू व्हाट आई गेट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, दिस इज a, दिस इज c d v, दिस इज p q w, that's what I have. Is this clear? That is what your right hand side, ये मेरा right hand side है, ये मेरा क्या है, right hand side है, ठीक है। Now look into the next one, next question what it says to you। next question आपका लेते हैं, this is taking up question number, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, लाइक इट इज मिसलेनियस का क्वेश्चन है बट इजी है, ठीक है। देखें इसको हम हाउ वी सॉल्व देम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इट्स 14, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 14। ये नॉर्मली 1 मार्कर्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखना इसको प्लीज। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, दिस इज 1 2 3, दिस इज 1 प्लस p, this is 3 plus 2p, this is 6 plus 3p, now this is 1 plus p plus q, this is 4 plus 3p plus 2q, this comes out to be 10 plus 6p plus 3q, ठीक है, this is equal to what, 0। कई लोग ना इसको भी एक्सपैंड कर देते हैं, ध्यान से देखना बड़ा स्मार्टली, इसका लॉजिक कैसे लगता है, 1 2 3 यहाँ पे भी है, 1 2 3 यहाँ पे भी है, और 1 2 3 यहाँ पे भी है, फिर यहाँ पे जो 1 3 6 आया वो 1 3 6 यहाँ पे है, ठीक है। दिस इज व्हाट p। नाउ व्हाट आई टेक अप इन दिस केस, r2 टेंड्स टू r2 minus 3 times, sorry not 3 times, it is 2 times, r2 minus 2 times of r1, r3 tends to what I get, r3 minus 3 times of r1। अगर मैं ऐसा लेता हूं तो दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, 1 0 0, दिस इज व्हाट वी गेट, 1 प्लस p, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट आई हैव। अगर मैं 2 टाइम्स करूंगा तो ये क्या आएगा, 1। अगर यहाँ पे इसी को मैं 3 टाइम्स लूंगा इसका तो ये क्या आएगा, 3। ये ध्यान से देखना, 1 प्लस p प्लस q, ये क्या आएगा, दिस इज व्हाट, 2 टाइम्स लिया, दिस इज 2, दिस इज 2p। नाउ अगर मैं इसको नेक्स्ट टाइम लेता हूँ, 3 टाइम्स लेता हूँ, 3 टाइम्स करूंगा तो ये क्या आएगा, 7 प्लस 3p, that's what I have, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, r3 tends to r3 minus 3 times of r2। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 1 0 0, 1 plus p, this is 1 0, this is 1 plus p plus q। अगर मैं अब यहाँ पे ध्यान से देखना, इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा 2 plus p, तो ये क्या आएगा, 1। अगर आपको याद हो बिगिनिंग में मैंने आपको बोला था डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 हो तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट विल बी माय आंसर इन दिस केस, तो इट कम्स आउट टू बी व्हाट, 1, सॉरी वी हैव टू प्रूव इट इक्वल टू 1। इसी का ना बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन वी हैव इट अप एज एग्जांपल नंबर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। दिस इज एग्जांपल नंबर 11। 11 का एग्जांपल क्या कहता है, दिस कम्स आउट टू बी a 2a 3a, दिस इज a plus b, दिस इज 3a plus 2b, this is what we get, 6a plus 3b, this comes out to be a plus b plus c, this is 4a plus 3b plus 2c, this comes out to be what I have, 10a plus 6b plus 3c, ठीक है। Now अब इसको अगर आप बड़े ध्यान से व्यू करोगे ऑलमोस्ट सेम वर्किंग है, सिर्फ यहाँ a ये इधर a नहीं है,
यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे सी आ गया, बाकी सब कुछ सेम है, ऑलमोस्ट सेम वर्किंग है। तो यहाँ पे जब छोड़ोगे तो इसमें बचेगा क्या, ए आ जाएगा। तो आंसर कम्स आउट टू बी ए क्यूब। आई होप यू विल डू इट अप दिस वन योरसेल्फ, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। एक क्वेश्चन और आई विल टेक अप विद यू, ठीक है, द फाइनल वन। दिस इज अगेन अ क्वेश्चन नंबर 15। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ मिसलेनियस। मिसलेनियस का 15 है। देखिए ध्यान से इसको। नाउ 15th क्वेश्चन क्या कहता है मिसलेनियस का? इट सेज इट यू व्हाट, sin alpha cos alpha, this is cos alpha plus delta, this comes out to be what I have, sin beta cos beta, this is cos beta plus delta, ठीक है। this is sin gamma cos gamma plus delta. Now what we get, this is, we have to prove it this is equal to 0. Now just see how we prove it. Very simple one. ये 0 मैंने यहाँ से रिमूव किया। अब मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से व्यू करना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दिस। इस वाले पार्ट को अगर आप देखोगे तो अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ तो दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, मेरे पास क्या आता है, सिर्फ मैं पहले वाले को करके दिखा रहा हूँ, cos alpha cos beta प्लस माइनस sin alpha sin delta, इट्स नॉट बीटा इट्स डेल्टा, ठीक है। ऐसे ही बीटा के साथ लोगे तो अल्फा की जगह बीटा आ जाएगा, इसकी जगह ये आ जाएगा। अब बड़े ध्यान से इसको व्यू करना क्वेश्चन को। हम इसमें क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, हाउ वी मूव इट, और ये एक ही रो में सारा 0 हो जाएगा। वो कैसे, C3 हम क्या लेंगे यहाँ पे, C3 टेंड्स टू C3। अब ये क्या था, cos डेल्टा, cos अल्फा के साथ क्या था, cos डेल्टा, तो हम क्या लेंगे, माइनस व्हाट वी गेट, cos डेल्टा ऑफ C2 प्लस sin डेल्टा ऑफ C3। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, दिस गिव्स अस sin अल्फा cos अल्फा, दिस इज 0, दिस इज व्हाट sin बीटा cos बीटा, दिस इज 0, this is what we get sin gamma cos gamma and this is 0. The answer comes out to be what, 0. अब ये हुआ क्या, यहाँ पे अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे, ये था this माइनस क्या किया, माइनस मैंने क्या लिया, cos इसके साथ क्या था, तो that comes out to be cos alpha cos delta plus sin alpha alpha sin delta भी है, ठीक है। That's the way we have. अब इसके ऊपर क्वेश्चन वैसे भी बन सकता है, ध्यान रखना, जरूरी नहीं ये प्लस के साथ ही आए। ये सेम क्वेश्चन क्या आ सकता है मेरे पास, माइनस के साथ भी आ सकता है। सेम क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन माइनस के साथ आता है। अगर ये माइनस के साथ आएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस। तो अब जब ऑपरेशन लेंगे, ऑपरेशन में मेरे पास यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, C1 की जगह इधर क्या आ जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी व्हाट, यहाँ पे ये तो माइनस ही रहेगा, सॉरी दिस बिकम्स प्लस, ये माइनस की जगह क्या होगा, प्लस, ये तो माइनस ही रहेगा, लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा, इसकी जगह ये भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। ऐसे सेम क्वेश्चन वी कैन हैव, ये ऐसे भी आ सकता है, दिस कैन बी रिटन एज sin अल्फा cos अल्फा, दिस इज व्हाट वी हैव sin अल्फा प्लस डेल्टा, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट वी गेट sin बीटा, this is cos beta, this is what we have cos alpha plus delta, this is we have sin gamma, this is cos gamma, this is cos gamma plus delta, ठीक है। that's the way we can do it, ठीक है। अब सॉरी cos की जगह, सॉरी यहाँ क्या आता है, इसमें भी sin आता है, इसमें भी sin आता है। अगर मैं अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो sin अल्फा ये क्या होता है, sin अल्फा प्लस डेल्टा इज व्हाट, sin अल्फा प्लस डेल्टा को व्हाट आई कैन राइट डाउन हैज, ध्यान से लिखना, यहाँ लिख रहा हूं, this is sin alpha cos delta plus what we get cos alpha sin delta। अब अगर आप इसका ऑपरेशन लगाते हो तो ऑपरेशन यहाँ पे क्या लगाओगे, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन है जहां sin अल्फा था उसके साथ क्या हुआ, C3 टेंड्स टू C3, और ये क्या था sin अल्फा के साथ माइनस क्या होगा, cos delta C1 and then we have minus sin delta C2, that's what we have। Now if I take up, so this comes out to be, ये तो सब सेम आएगा, this is 0 0 0 and if I expand up I will get the answer as 0, ठीक है। सेम वे अगर मेरे पास यहाँ प्लस है, इसकी जगह माइनस आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, माइनस आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ माइनस आ जाएगा। तो ध्यान रखना, जहाँ पे cos डेल्टा मल्टीप्लाई करना था उसकी जगह क्या कर देना, प्लस कर देना, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन इसके क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है।
अब 2-3 क्वेश्चन ही हमारे प्रॉपर्टीज के बचे हैं, बाकी सब हमारा खत्म हो चुका है. That we'll take up in the next lecture with you and finish up with the complete working of properties. And also the next lecture में we even start up with 4.3 exercise as well. So please take care, enjoy yourself, God bless you.